अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक डेटा कम्युनिकेशन का चल रहा था। इसमें हमने डेटा कम्युनिकेशन फंडामेंटल्स ऑफ टोपोलॉजीज़ तक पढ़ लिया था। इसके बाद हमने स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस का स्टार्ट किया था। स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में ये कुछ एब्रीविएशंस दिए हुए हैं। ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये क्या करती है? इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ फील्ड्स। द ISO हैज़ अ मेंबर्स फ्रॉम the standard committees of various governments across the world. और IEEE stands for Institute of Electrical and Electronic Engineering. ये क्या है? इट इज़ एन इंटरनेशनल प्रोफेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर्स, रिसर्चर्स, scientists and students are the member of IEEE. This organization develops communication and information processing standards for all fields related to electrical and computer engineering. फिर नेक्स्ट है ISO का इंटरनेशनल इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF. It is a large international community of network designers, operators, vendors and researchers concerned with the development of internet architecture and smooth operation of the internet. फिर ITU stands for International Telecommunication Union. This organization is a specialized agency that is responsible for resolving the issues that concern with information and communication technologies. इसके बाद आता है ANSI stands for American National Standards Institute. It is the official standards agency for the United States. ANSI is a completely private non-profit organization comprised of equipment manufacturers and users of data processing equipments and services. फिर नेटवर्क आर्किटेक्चर का हमने पढ़ा था। नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है? इट इज़ द डिज़ाइन ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। इट इज़ अ फ्रेमवर्क for specification of a network's physical components, their functional organization and configuration, operational procedures and communication protocols used, just like OSI, TCP layered architectures. ISOs and OSI models. OSI stands for the Open Systems Interconnection Model, is a conceptual model developed by ISO. It characterizes and standardizes the communication functions of a telecommunication and computing networks. Its goal is the interoperability of different communication systems with standard communication protocols. This model divides our communication systems into 7 abstraction layers. ये 7 एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स में डिवाइड करती है ये कम्युनिकेशन सिस्टम। ये वाला मॉडल जो है इन लेयर्स की जो डिटेल है वो इस तरह से है। ये अपवर्ड से डाउनवर्ड चले हैं। ये नंबर 7 पे है application. This layer enables users to access the network with applications such as email, file transfer etc. उसके बाद प्रेजेंटेशन आ जाती है नंबर 6 पे। ये क्या करती है? इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर्स एंड कन्वर्ट्स इट इनटू यूनिफॉर्म नेटवर्क फॉर्मेट ASCII और यूनिकोड विच इज़ एक्सेप्टेबल बाय रेस्ट ऑफ OSI मॉडल एंड डेस्टिनेशन। और सेशन क्या है नंबर 5 पे? दिस लेयर इस्टेब्लिशेस, मेंटेन्स एंड एंड्स अ सेशन और लॉजिकल कनेक्शंस बिटवीन एप्लीकेशंस ऑन 2 computers. It manages who can transmit data at a certain time and for how long. This layer adds checkpoints. If session fails, only data after the most recent checkpoints needs to be transmitted. नंबर 4 पे आ जाता है ट्रांसपोर्ट। ये क्या करता है? इट इंश्योर्स द रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा. Transport layer manages error control
flow control, and quality of the service. If the data is not properly transmitted, it requests to resend. ट्रांसपोर्ट का ये काम होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का. फिर नेटवर्क लेयर आ जाती है नंबर 3 पे. द फंक्शन ऑफ दिस लेयर इज़ द सिलेक्शन ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड सूटेबल पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन फ्रॉम द नंबर ऑफ राउट्स अवेलेबल. इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट लॉजिकल एड्रेस, IP एड्रेस जिसे कहते हैं. IP एड्रेस को क्या करती है, फिज़िकल एड्रेस में चेंज करती है, मैक एड्रेस कहलाता है वो. इसके बाद नंबर 2 पे डेटा लिंक आ जाता है. दिस लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट डेटा यूजिंग फिज़िकल एड्रेसेस. डेटा लिंक लेयर इंश्योर्स एरर फ्री ट्रांसमिशन ऑफ पैकेट्स. पैकेट इन दिस लेयर इज़ रेफर्ड एज फ्रेम. नंबर 1 पे आ जाता है, लास्ट 1 पे, फिज़िकल. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू बिट्स. It also defines the cable types to be used as transmission media, cards, topology and other physical aspects. ये तमाम layers का जिक्र है, फिर उनके functions बताए गए हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में. इसके बाद हमारा आ जाता है TCP एंड IP मॉडल. TCP एंड IP मॉडल जो है ये सूट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं जो कि इंटरकनेक्ट होती हैं नेटवर्क डिवाइसेस से इंटरनेट पे. These are set of rules and procedures. TCP IP specifies how data is exchanged over the internet by providing end-to-end communications. It identifies how data should be broken into packets, addressed, transmitted, routed and received at the destination. With reference to OSI layers, we can understand the function of TCP IP layers. अभी अब TCP IP layers की आगे एक्सप्लेनेशन आ रही है. OSI layers हैं, फिर उसकी आगे दूसरे कॉलम में TCP IP layers हैं, फिर उनके फंक्शंस बताए गए हैं. OSI layers एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन. इनके जो TCP IP layers हैं वो एप्लीकेशन layers हैं और इसके फंक्शंस हैं यूजिंग प्रोटोकॉल्स लाइक HTTP एंड FTP. This layer allows interaction with applications. Application layer is also responsible to encode and decode data and establish communication between two devices. इसके बाद नेक्स्ट उस पर OSI लेयर की सेकंड ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट लेयर. और इसका जो TCP IP लेयर है वो ट्रांसपोर्ट लेयर है और इसका फंक्शन है यूजिंग प्रोटोकॉल्स लाइक UDP एंड TCP. This layer establishes a logical connection between two devices and makes sure the reliable delivery of data. फिर नेटवर्क OSI लेयर में नेटवर्क लेयर आ जाती है, इंटरनेट लेयर. ये क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है पैकेट्स फॉरवर्ड करने की बाय एक्सेसिंग फ़िज़िकल पाथ लेके वहाँ तक एक्सेस करती है, फिर इसको पैकेट्स फॉर्म में उसको आगे फॉरवर्ड करने की रिस्पॉन्सिबल होती है ये. और डेटा लिंक एंड फिज़िकल OSI लेयर में लास्ट वन है. डेटा लिंक एंड फिज़िकल लेयर में इसकी जो TCP IP लेयर आ जाती है नेटवर्क एक्सेस लेयर कहलाती है. इसका फंक्शन क्या है, यूजिंग द लॉजिकल एड्रेसिंग दिस लेयर डिसाइड्स हाउ डेटा विल बी सेंट अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क पाथ्स. ये लॉजिकल एड्रेस को इस्तेमाल करते हुए ये लेयर जो है वो डिसाइड करती है कि डेटा को किस तरह से दूसरे नेटवर्क पाथ्स पे डिफरेंट नेटवर्क पाथ्स में भेजा जा सकता है. फिर इसके बाद नेटवर्क एड्रेसिंग आ जाता है हमारा डेटा कम्युनिकेशन में. नेटवर्क एड्रेसेस आर लाइक आवर हाउस एड्रेसेस. दे मस्ट बी यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव. दिस अवॉइड्स confusion for the postman. A network address is any logical or physical address that uniquely identifies it from others. This address is needed to distinguish a network node or device on a computer network. It is a numeric or symbolic number or address that is assigned to any device that seeks access to network or in the part of a network. ये बात याद रखने की है कि फ़िज़िकल एंड लॉजिकल एड्रेस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं बिल्कुल.
राइट, फिज़िकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस। अब इसमें डिफ्रेंशिएट बताया गया है 2 कॉलम्स में। फिज़िकल एड्रेस इज़ अटैच्ड विद रोम एंड एनआईसी कार्ड्स, और लॉजिकल एड्रेस जो है वो असाइन टू अ डिवाइस। ये लॉजिकल एड्रेस जो डिवाइस को असाइन किया जाता है, और फिज़िकल एड्रेस जो है वो अटैच होता है रोम और एनआईसी कार्ड के साथ। सेकंड नंबर पे इनका डिफ्रेंशिएट बताया गया है कि फ़िज़िकल एड्रेसिंग मींस मैक मींस मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये क्या करता है? मैक प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरर एंड अटैच्ड एड्रेस ऑफ द NIC, the card which is used to connect your machine to the internet. On the other hand, logical address क्या है इसके अगेंस्ट? Logical addressing means IP addressing that is provided by your internet service provider, जिसको ISP इसका शॉर्ट है। ISP stands for Internet Service Provider. ये क्या करता है? लॉजिकल एड्रेस मीन्स IP addressing that is provided by ISP और सेट बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। नंबर थर्ड पे है फिज़िकल एड्रेसिंग कैन नॉट बी चेंज्ड, दे आर ऑल्सो कॉल्ड हार्डवेयर एड्रेस। जबकि लॉजिकल एड्रेस जो है इसको चेंज किया जा सकता है, फिज़िकल एड्रेस को चेंज नहीं किया जा सकता, ये हार्डवेयर एड्रेस होता है। लॉजिकल एड्रेस को चेंज किया जा सकता है। फिज़िकल एड्रेस 48 बिट्स मैक एड्रेस होता है, और लॉजिकल एड्रेस जो है 32 बिट्स IP एड्रेस कहलाता है। और फिज़िकल एड्रेस जो है इट इज़ ग्लोबली यूनिक एंड परमानेंट, जबकि लॉजिकल एड्रेस इज़ यूनिक इन वन नेटवर्क एंड टेम्परेरी होता है और यूनिक होता है, और सिर्फ एक नेटवर्क से कनेक्ट होता है ये। जबकि फ़िज़िकल एड्रेस जो है वो ग्लोबली यूनिक होता है और परमानेंट होता है। इसके बाद IPv4 एड्रेस आ जाता है। IPv4 address, an IP address is a unique number or address used to identify a device on a network. IP address क्या है? यूनिक नंबर और एड्रेस है जो कि यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए डिवाइस को नेटवर्क पर डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है कि किसकी डिवाइस है, कौन सी डिवाइस है और नेटवर्क कौन सा यूज़ हो रहा है। तो ये IP एड्रेस जो है ये इसको डिफ़ाइन करता है। The device could be a computer, printer, smartphone, tablet, etc. इसके बाद every device connected to the internet must have an IP address. जितनी भी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं तो उनका IP एड्रेस लाजमी होता है, जो कि अदर डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करने में इस्तेमाल होता है। IP एड्रेस एक्ट करता है बिल्कुल जस्ट लाइक टेलीफोन नंबर की तरह ना, और कार रजिस्ट्रेशन नंबर और टेलीफोन नंबर की तरह एक्ट करता है ये। इट शोज़ ओनरशिप एंड लोकेशन। IP एड्रेस अलाउज अ डिवाइस टू कम्युनिकेट एंड बी लोकेटेड बाय अदर डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट। IPv4 stands for Internet Protocol version 4. An IPv4 address is made up of 32 binary bits, which is divided into two parts, network and host. The network portion of the address mentions the computer network, and the host portion identifies the computer or any other computing device. IP version 4 IPv4 addresses are comprised of 4 numbers segments separated by dots. Example of an IP address is 192.168.108.105। इस तरह से ये एड्रेस दिया होता है। इसके बाद हमारी आ जाती है समरी आ जाती है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है।